إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم، نبی مومنوں کی ان کی جانوں سے بھی زیادہ مالک ہے اور ان کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔ آج 17 رمضان المبارک ہے۔ آج ام المؤمنین زوجہ رسول کریم حبیبہ حبیب خدا عفیفہ صدیقہ عالمہ مفتیہ مفسرہ محدثہ عابدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام نامی اسم گرامی عائشہ، کنیت ام عبداللہ، لقب صدیقہ حمیرہ، باپ کا نام حضرت ابو بکر صدیق، والدہ کا نام ام رومان اور قبیلے کا نام غنم بن مالک تھا۔ شجرہ نسب یوں بیان کیا جاتا ہے: عائشہ بنت ابی بکر بن ابی قحافہ رضی اللہ تعالی عنہم، اس مبارک ماں پہ صدقے کیوں نہ ہوں سب اہل دین، اس مبارک ماں پہ صدقے کیوں نہ ہوں سب اہل دین، جو ہو ام المؤمنی بنت امیر المؤمنی، کیا مبارک نام ہے، کیسا پیارا ہے لقب، عائشہ محبوبہ محبوب رب العالمین۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے 10 نبوی کو 6 سال کی عمر میں مکہ میں نکاح کیا، جبکہ رخصتی 1 ہجری کو مدینہ طیبہ میں ہوئی۔ اس نکاح کا مقصد خواہشات کی تسکین نہیں تھا، بلکہ جانثار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے رشتہ داری قائم کرنا تھا۔ اس کے علاوہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو امت کے لیے معلمہ بنانا بھی مقصود تھا، تاکہ لوگوں کو شرعی مسائل اور احکامات سے آگاہ کیا جا سکے۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وصال نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد طویل عرصے تک زندہ رہیں اور لوگوں کو شرعی مسائل کی رہنمائی کرتی رہیں۔ اس طرح نکاح کرنے کا اصل مقصد پورا ہوا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نہایت درجے کی ذہین، فتین اور دور اندیش خاتون تھی۔ آپ کا علمی مقام بہت بلند تھا۔ فقہاء اور دیگر صحابہ کرام آپ کے علمی مقام سے خوب آگاہ تھے۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میں نے کسی کو بھی معنی قرآن، احکام حلال و حرام، اشعار عرب اور علم الانساب میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ عالم نہیں دیکھا۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لو جمع علم النساء هذه الامة فيهن ازواج النبي كان علم عائشہ رضی اللہ عنہا اکثر من علمہن۔ فرمایا اس پوری امت کی عالمات کو، فاضلات کو، محدثات کو، مفسرات کو، مفکرات کو، مجتہدات کو اور فقیہات کو اگر ایک طرف رکھ دیا جائے، ان میں ازواج مطہرات بھی ہوں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری امت کی پڑھی لکھی خواتین ایک طرف ہوں اور دوسری طرف اکیلی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا علم ہو تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا علم سب سے بھاری ہوگا۔
इतना इल्म अल्लाह ताला ने हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा को अता फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया, खुजू शतरा दीनिकुम अनिल हमीराई, ऐ मेरे सहाबा हमीरा रदी अल्लाह ताला अन्हा से आधा दीन सीख लेना। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु को छोड़कर बाकी तमाम सहाबा कराम में से जिनका हदीस रिवायत करने में पहला नंबर है वो सैयदा आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा है। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने 5374 हदीसें रिवायत की हैं और उनके बाद दूसरा नंबर हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा का है, जिन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमोबेश 2210 हदीसें रिवायत की हैं। हजरत उम्मुल मुमिनीन आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा अहादीस को बयान करने में निहायत दर्जा की मोहतात थी। आपने हल्का तदरीस जारी किया जिसमें तुलबा व तालिबात हाजिर होती, कस्बे इल्म करती। हजरत इब्ने अबी आसिम ने उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका से रवायत किया है कि जब हजरत खदीजातुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा विसाल फरमा गईं तो खौला बिनते हकीम ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप शादी नहीं करते? आपने पूछा किससे? अर्ज किया, आप चाहें तो कंवारी से और आप चाहें तो बेवा से निकाह करें। आपने दरियाफ्त फरमाया, कंवारी कौन है? अर्ज किया, वो उनकी साहबजादी है जो आपको अल्लाह ताला की मखलूक में सबसे ज्यादा महबूब है, यानी हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु की साहबजादी। फिर आपने पूछा कि बेवा कौन है? अर्ज किया, वो हजरत सौदा बिनते ज़मआ हैं रदी अल्लाह ताला अन्हा, जो आप पर ईमान लाई और उन्होंने अपनी पैरवी की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अच्छा आप जाएं और उनसे मेरा जिक्र करें। चुनाचे वो गईं और हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु के घर में दाखिल हुई। हजरत उम्मे रुमान से मिली। उन्होंने पूछा, कैसे आना हुआ? इन्होंने बताया, इनको रसूलुल्लाह ने भेजा है। वो हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह का पैगाम दे रही हैं। उन्होंने कहा, मैं चाहती हूं कि आप हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु का इंतजार कर लें। इतने में हजरत अबू बकर सिद्दीक तशरीफ लाए तो उनसे हजरत उम्मे रुमान ने अर्ज किया। चुनाचे उन्होंने कहा, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कैसे जायज हो सकती है, वो तो इनकी भतीजी है। हजरत खौला वापस गईं और आपसे जिक्र किया। आपने फरमाया, हजरत अबू बकर सिद्दीक से कहो वो मेरे दीनी भाई हैं और उनकी बेटी मेरे लिए हलाल है। चुनाचे हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो ने हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा का आपसे निकाह कर दिया। उस वक्त उनकी उम्र मुबारक 6 साल थी। उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका से रवायत है कि उन्होंने फरमाया कि मुझे आपने इरशाद फरमाया, मैंने तुम्हें ख्वाब में देखा। निकाह से कबल 2 बार ख्वाब में देखा या 3 रातें देखा। एक फरिश्ता रेशम के टुकड़े पर तस्वीर लेकर आया। उसने कहा, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुतहरा हैं। चेहरे से पर्दा हटाया तो तुम थी। मैंने कहा, अगर रब ताला के यहाँ इसी तरह है तो वो जरूर कर देगा। इमाम तिरमिजी ने हसन और इब्ने असाकर ने उनसे रिवायत किया है कि उन्होंने फरमाया कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम मुझे सब्ज रेशम के कपड़े में लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुकद्दसा में हाजिर हुए। अर्ज किया, ये दुनिया और आखिरत में तुम्हारी ज़ौजा हैं। एक और रवायत में कहा कि उन्होंने फरमाया कि आपने मुझसे निकाह न किया हत्ता के हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आपके पास मेरी तस्वीर लेकर आए। उन्होंने अर्ज किया, ये दुनिया और आखिरत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा हैं। जब आपने मुझसे निकाह फरमाया तो मैं बिल्कुल लड़की थी। जब आपने मेरे साथ निकाह किया तो रब ताला ने मुझ पर हया तारी कर दी। जब आप रदी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह हुआ तो उस वक्त आपकी उम्र मुबारक 6 साल थी और जिस वक्त आपकी रुखसती हुई उस वक्त आपकी उम्र मुबारक 9 साल थी। इमाम मुस्लिम कुशैरी रहमतुल्लाह अलैह ने इनसे ही रिवायत किया है कि जब आपने इनसे निकाह किया तो उस वक्त आपकी उम्र 7 साल थी। जब रुखसती हुई तो उम्र मुबारक 9 साल थी।
जब आपका विसाल हुआ तो आपकी उम्र मुबारक 18 साल थी। इमाम अहमद ने मुस्नद में हजरत अस्मा बिनते अमीस से रिवायत किया कि मैं उन औरतों में शामिल थी जिन्होंने हजरत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा को संवारा था। उनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश किया गया। मेरे हमरा 2 खवातीन थी। अल्लाह ताला की कसम, हमने आपके यहाँ कोई जियाफत ना पाई, सिर्फ इसके कि दूध का एक प्याला था, आपने उससे नोश फरमाया, फिर हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा को दिया। उन्होंने हया किया। मैंने कहा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ वापस ना लौटाना। उन्होंने हया के साथ उसे पकड़ लिया, दूध पिया। फिर आपने मुझे फरमाया, अपनी साथियों को दो। उन्होंने कहा, हमें भूख नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, भूख और झूठ को जमा ना करो। मैंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर हम में से कोई ऐसी चीज जिसे वो चाहती हो उसके बारे में कहे कि इसे इसकी जरूरत नहीं, क्या ये झूठ है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, झूठ को झूठ ही लिखा जाता है, हत्ता के छोटे झूठ को छोटा झूठ लिखा जाता है। उम्मुल मोमिनीन रदियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि जब मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया गया तो मेरे बाल घने और कानों तक थे। हजरत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब आपने मुझसे निकाह किया वो शवालुल मुकर्रम का महीना था। उम्मुल मोमिनीन के साथ आपने हिजरत से 2 साल पहले निकाह किया। शवालुल मुकर्रम का महीना था। उस वक्त आपकी उम्र मुबारक 6 साल थी। अहले अरब शवालुल मुकर्रम में औरतों की रुखसती को नापसंद करते थे। एक रिवायत में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या तुम इस पर राजी नहीं हो कि तुम दुनिया और आखिरत में मेरी जोजा हो, तुम दुनिया और आखिरत में मेरी जोजा हो। एक जगह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आयशा जन्नत में मेरी जोजा हैं। हजरत अम्मार रिवायत करते हैं कि उन्होंने फरमाया, हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा दुनिया और आखिरत में आपकी जोजा हैं। एक रिवायत में आता है कि उम्मुल मोमिनीन रिवायत करती हैं, उन्होंने आपसे अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जन्नत में आपकी अज़वाज कौन होंगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम उनमें से हो। एक दफा सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके यहाँ सबसे ज्यादा महबूब कौन है? आपने जवाब दिया, आयशा। अर्ज किया गया, मर्दों में सबसे ज्यादा महबूब कौन है? आपने फरमाया, उनके बाप अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा से दरियाफ्त किया गया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ लोगों में सबसे ज्यादा महबूब कौन था? जवाब दिया, हजरत फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा। फिर सवाल किया गया, मर्दों में सबसे ज्यादा महबूब कौन है? जवाब दिया, उनके शौहर हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु। इन सारी रिवायात में तत्बीक की एक ये सूरत है कि मुहातुल मोमिनीन में से महबूब तर हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा थी। औलाद में से हजरत फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा थी। अहले बैत में से महबूब तरीन हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हो और सहाबा किराम में से हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हो। एक दफा हजरत इब्ने अब्बास इजाजत लेने के लिए उम्मुल मोमिनीन की खिदमत में हाजिर हुए। उन्होंने फरमाया, मुझे उनकी इस्लाह की कोई जरूरत नहीं। हजरत अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर ने अर्ज किया, इब्ने अब्बास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने के एक साले फर्द हैं, वो आपकी इयादत के लिए आए हैं। इरशाद फरमाया, इनको इजाजत है। वो अंदर आए। अर्ज किया, अम्मी जान आपको बिशारत हो, आपके और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके प्यारों से मिलने का वक्त इतना है कि आपकी रूह आपके जिस्म से जुदा हो जाए। आप तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाजे मुतहरात में से महबूबे ज़ौजाए मुतहरा हैं। आप पाकीज़ा को ही पसंद फरमाते थे। अबवा के मकाम पर आपका हार गुम हो गया। वक्ते सुबह आपने उसको पा लिया, मगर सहाबा किराम अलैहिम रिदवान के पास पानी न था। उस वक्त आयत तयम्मुम नाजिल हुई। आपकी वजह से और बरकत से इस उम्मत मुस्लिमा को रुखसत मिली।
مستہ کا معاملہ تھا جو رب تعالیٰ نے آپ کی پاک دامنی کے بارے میں 7ویں آسمان پر سے آیات نازل فرمائی۔ یہ مسجد میں صبح و شام ان آیات کی تلاوت ہوتی ہے۔ ام المؤمنین نے فرمایا، ابن عباس مجھے اور اپنی اس اصلاح کو چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ کی قسم میری تو خواہش ہے کہ مجھے بالکل فراموش کر دیا جاتا۔ ابن حبان نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے دیکھا خواب میں کہ آپ کی طبیعت خوشگوار تھی۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا فرمائیں۔ آپ نے میرے لیے یہ دعا فرمائی، اے مولا عز و جل عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اگلے پچھلے اعلانیہ اور پوشیدہ گناہ معاف فرما۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مسکرا اٹھی، حتیٰ کہ مسکراتے مسکراتے سر آپ کی گود میں رکھ دیا۔ آپ نے فرمایا، میری دعا نے تمہیں خوش کر دیا ہے۔ عرض کیا، مجھے آپ کی دعا خوش کیوں نہ کرے گی؟ ارشاد فرمایا، باخدا میں ہر نماز میں اپنی امت کے لیے یہی دعا مانگتا ہوں۔ امام مسلم نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آیت تخییر نازل کی تو آپ نے ابتدا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کی۔ ارشاد فرمایا، میں تم سے ایک امر ذکر کرنے لگا ہوں، تم اس کے بارے میں جلدی نہ کرنا، تم اپنے والدین سے مشورہ کر لینا۔ وہ عرض گزار ہوئی، وہ کیا ہے؟ آپ نے آیت تخییر تلاوت فرمائی۔ وہ کیا تھی آیت؟ وہ یہ تھی، اے نبی اپنی ازواج سے فرما دیجئے اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی آرائش چاہتی ہو۔ وہ عرض گزار ہوئی، کیا میں آپ کے بارے میں اپنے والدین سے مشورہ کروں گی؟ بلکہ میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند کرتی ہوں۔ آپ کے پاس حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ 1,00,000 درہم بھیجے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً ایک تھال منگوایا اور ان درہموں کو اس میں ڈال کر تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ شام تک سارے کا سارا مال تقسیم کر دیا۔ آپ نے روزہ رکھا ہوا تھا۔ فلما امست قالت یا جاریۃ حلمی فطری، جس وقت مغرب کا وقت ہوا تو آپ نے ایک بچی سے کہا کہ افطاری کا سامان لاؤ۔ فجاءت بخبز وزیت، وہ بچی روٹی اور زیتون لے کر آئی کیونکہ اس کے علاوہ گھر میں کچھ تھا نہیں۔ فقالت لہا ام زرۃ، تو جو پاس بیٹھی ہوئی تھی ام زرہ، اس نے کہا، ام استطعتی مما قسمت اليوم ان تشتری لنا بدرہم لحما نفطر علیہ۔ کہنے لگی، ہے عائشہ 1,00,000 تم نے لوگوں میں تقسیم کر دیا، اس میں سے افطاری کے لیے گوشت ہی منگوا لیتی، کھانا ہی بنا لیتی۔ فقالت لہا، تو آپ نے ان سے کہا، لا تعنفینی لو کنتی ذکرتنی لفعلت، اگر تم مجھے اس وقت یاد دلاتی تو میں ایسا کرتی۔ یعنی حضرت عائشہ نے انکار کے انداز میں کہا کہ تو نے اس وقت مجھے مشورہ دینا تھا، اب مجھے مشورہ دے رہی ہو۔ یعنی اس سخاوت میں بھی اتنا ان کا مقام ہے اور اس قدر ریاضت اور مجاہدہ ہے، رب نے اتنا دیا ہے اور اس کو پھر رب کے راستے میں یوں دے دیا ہے کہ کچھ بھی پاس نہیں رکھا، سب تقسیم کر دیا ہے۔ ان انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، یقول فضل عائشہ علی النساء کفضل الثرید علی سائر الطعام، عائشہ کو تمام خواتین پر اسی طرح فضیلت حاصل ہے جس طرح سرید کو تمام کھانوں پر فضیلت حاصل ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے، قالا ابو سلمہ تھا، ابو سلمہ کہتے ہیں، انا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت، حضرت عائشہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہیں، قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یومن یا عائشہ ھذا جبریل، اے عائشہ یہ جبریل ہیں، یقریک السلام، جو تمہیں سلام کہہ رہے ہیں۔ فقلت وعلیہ السلام،
फिर मैंने कहा उन पर भी सलामती हो, व रहमतुल्लाही, और अल्लाह की रहमत हो, व बरकातुहू, और उन पर बरकत हो। तरा मा ला अरा तुरीदु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उस चीज को देख लेते थे, मुलाहिजा फरमाते थे जिसे मैं नहीं देख पाती थी। यानी सैयदा आयशा की मुराद थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील अलैहिस्सलाम को देख सकते थे। मसरूक से रिवायत है, हजरत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने कहते हैं कि मुझसे फरमाया, मैंने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को अपने उस हुजरे में खड़े हुए देखा। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सरगोशी में बातें कर रहे थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरे में दाखिल हुए तो मैंने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कौन थे? आपने पूछा, तुमने उनको किसके मुशाबे पाया? मैंने कहा, दाहिया कल्बी, यानी हजरत दाहिया कल्बी रदियल्लाहु ताला अन्हो के। आपने इरशाद फरमाया, तुमने खैर कसीर को देखा है। ये हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम थे। वो बहुत थोड़ी देर ठहरते थे, हत्ता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये जिब्रील हैं, तुमको सलाम कह रहे हैं। मैंने कहा, व अलैहिस्सलाम, दाखिल होने वाले को अल्लाह ताला नेक जज़ा दे। हजरत आयशा तैयबा ताहिरा रदियल्लाहु ताला अन्हा गुड़ियों से खेला करती थी। आप फरमाती हैं, मेरे पास मेरी सहेलियां आती थी, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर शर्म या खौफ से चुप जाती थी। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको मेरे पास भेज देते थे, फिर वो आकर मेरे पास खेलती थी। हजरत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, मैं उस हुजरे में दाखिल होती थी जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दफन थे, तो मैंने अपना कपड़ा रखा होता था। मैं कहती थी, ये मेरे खामिद मोहतरम हैं, उनके साथ मेरे वालिदे गिरामी हैं। जब हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हो दफन हुए तो मैं अपने कपड़े ओढ़कर अंदर जाती थी। ये हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हो से हया की वजह से था। इमाम तिबरानी ने हजरत मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत किया कि उन्होंने फरमाया, मैंने किसी खतीब को नहीं देखा जो हजरत आयशा सिद्दीका तैयबा ताहिरा रदियल्लाहु ताला अन्हा से ज्यादा बलीग, फसीह और ज़हीन हो। इमाम इब्ने साद ने उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत किया कि उन्होंने फरमाया, मुझे अज़वाजे मुताहरात पर 10 फजीलतें हासिल हैं। अर्ज की गई, ए उम्मुल मुमिनीन, वो कौन सी हैं? इरशाद फरमाया, मेरे अलावा आपने किसी कंवारी औरत से निकाह न किया, मेरे अलावा किसी और ऐसी औरत से निकाह न किया जिसके वालिदैन मोमिन और मुहाजिर हों। रब ताला ने मेरी पाकीज़गी के लिए आयात आसमान से नाजिल फरमाई। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आसमान से रेशम पर मेरी तस्वीर लेकर आए। उन्होंने अर्ज किया, इनसे निकाह फरमा लीजिए, ये आपकी ज़ौजा मुताहरा हैं। मैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही बर्तन में गुस्ल कर लेते थे। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे अलावा किसी और ज़ौजा के साथ न किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास होते थे कि आप पर नज़ूले वही होता था। मेरे अलावा किसी और ज़ौजा के पास नज़ूले वही न हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे सीने मुबारक पर थे कि आपका विसाल हुआ। उस दिन मेरी ही बारी थी और मेरे ही हुजरा मुकद्दसा में ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा हुए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने विसाल फरमाया तो मेरे और फरिश्तों के अलावा और कोई ना था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुताहरा आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा रिवायत करती हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तंदुरुस्त थे तो ये फरमा रहे थे, किसी नबी की उस वक्त तक रूह कब्ज नहीं की गई जब तक कि उसको जन्नत में उसका ठिकाना दिखा नहीं दिया गया, फिर उसको इख्तियार दिया जाता है, यानी मौत का इख्तियार। हजरत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मरजुल मौत तारी हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर अक़दस मेरे जानू पर था। आप पर एक साथ गशी तारी हुई, फिर आपको होश आ गया, फिर आपकी नजर छत की तरफ जा लगी, फिर आपने फरमाया अर रफीकुल आला। हजरत आयशा सिद्दीका ने कहा, फिर मैंने दिल में सोचा अब हमें इख्तियार नहीं करेंगे। हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आखिरी बात कही वो यही थी, अल्लाहुम्मा अर रफीकुल आला।
आप फरमाती हैं आखिरी वक्त में, आपके विसाल के वक्त में अल्लाह ताला ने मेरे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाबे दहन को जमा फरमा दिया। अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर मिसवाक हाथ में लिए हुए आए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टेक लगाए हुए थे। मैंने देखा कि आप उनकी तरफ देख रहे हैं। मैंने जान लिया कि आप मिसवाक को पसंद कर रहे हैं। मैंने पूछा, आया मैं आपके लिए ये मिसवाक लूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर के इशारे से फरमाया, हाँ। मैंने मिसवाक लेकर आपको दी। आपको वो सख्त लगी। मैंने पूछा, क्या मैं आपको इसको नरम कर दूं? आपने सर के इशारे से फरमाया, हाँ। फिर मैंने इसको अपने मुंह में चबाकर नरम कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी के डूंगे में हाथ डालकर अपने चेहरे पर फिरते और फरमाते, ला इलाहा इल्लल्लाह, बेशक मौत की सख्तियां हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ खड़ा करके फरमाया, अर रफीकुल आला, हत्ता के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह कब्ज कर ली गई और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हाथ झुक गया। हजरत सौदा बिनते ज़मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपनी बारी हजरत आयशा सिद्दीका को हिबा कर दी थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा सिद्दीका के बारी के दिन भी हजरत आयशा के पास रहते थे और हजरत सौदा बिन ज़मा की बारी के दिन भी हजरत आयशा के पास रहते थे। अब्दुर्रहमान फरमाते हैं कि मैंने हजरत आयशा सिद्दीका तैयबा ताहिरा से सुना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबुव्वत के 10वें साल में हिजरत से 3 साल पहले मुझसे निकाह किया। उस वक्त मेरी उम्र 6 साल थी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 12 रबीउल अव्वल पीर के दिन हिजरत करके मदीना मुनव्वरा में तशरीफ लाए और हिजरत के 8 महीने बाद मेरी रुखसती हो गई और जिस दिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास मुझे पेश किया गया उस दिन मेरी उम्र 9 साल की थी। इमाम नसाई ने सही असनाद के साथ हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत किया है कि किसी सफर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा थी। इरशाद फरमाया, आओ मैं तुम्हारे साथ मुकाबला करता हूँ। मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुकाबला किया तो मैं आगे निकल गई। जब मुझ पर मोटापा आ गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दौड़ लगाई तो आप आगे निकल गए। इरशाद फरमाया, ए आयशा, ये उसका बदला है। इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत किया कि उन्होंने फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश तबई फरमाते थे। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जिस्मानी औलाद तो नहीं थी लेकिन आपकी इल्मी और रूहानी औलाद की बहुत ज्यादा तादाद थी। क़यामत तक ये सिलसिला फैला हुआ है। आपकी वालदा उम्मे रुमान जब उनका इंतकाल हुआ 6 हिजरी में तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी कब्र में उतरे और उनके हक में यूं दुआ की, ए परवरदिगार, तुझसे पोशीदा नहीं है कि उम्मे रुमान किनानिया ने तेरे लिए और तेरे नबी के लिए क्या कुछ बर्दाश्त किया। आपने उनके बारे में परवरदिगार से ये दुआ भी की थी, जो शख्स हुराने जन्नत में से किसी को देखना पसंद करता हो तो वो उम्मे रुमान को देख ले। हजरत अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर ये आपके हकीकी भाई हैं और हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपकी हकीकी बहन हैं। इनकी 4 नस्लें सहाबियात के मर्तबे पर फाइज हुई। हजरत अबू कहाफा, हजरत सिद्दीक अकबर, हजरत अब्दुर्रहमान और उनका बेटा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम। हजरत आयशा तैयबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का विसाल 17 रमज़ानुल मुबारक 58 हिजरी में हुआ। उस वक्त आपकी उम्र मुबारक 66 साल थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद आप 47 साल जिंदा रहीं। अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नमाज जनाजा पढ़ाई। हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का दौरे हुकूमत था और मदीना मुनव्वरा का हाकिम मरवान था। जन्नतुल बक़ी में मदफन हुई। जन्नतुल बक़ी में मदफन हुई। इकरमा बयान करते हैं, सुबह की नमाज के बाद हजरत इब्ने अब्बास से कहा गया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फुलां सौजा मुहतरमा का इंतकाल हो गया है। तो वो सजदे में चले गए। उनसे दरियाफ्त किया गया, आप इस वक्त सजदे में जा रही हैं, इस वक्त सजदा कर रही हैं? तो उन्होंने फरमाया, क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद नहीं फरमाया है, जब तुम कोई निशान देख लो तो सजदा कर लो? इससे बड़ी निशानी और क्या होगी? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा दुनिया से रुखसत हो गई। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा निहायत मुत्तकी, परहेजगार, रोजादार, साहिबे इल्मो फरासत थी।
روایت کے لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو خواتین کا کتنا بڑا حصہ ہے کہ نصف دین ان کی روایت سے ہے۔ بالخصوص حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا اتنی ساری حدیث کا بیان کرنا اس بات کا سبق تھا کہ اے خواتین اسلام، تمہارے لیے شروع سے باقاعدہ اشاعت دین میں حصہ ہے۔ اسلام نے تمہارے لیے باقاعدہ ایک علم کا کوٹا مختص کیا ہے۔ سیدہ عائشہ کو اپنی ماں کہنے والی بیٹیوں، بہنوں، جیسے ان کا علم تھا تم بھی وہ علم حاصل کرو، تم بھی وہ شعور حاصل کرو، اور تم بھی وہ دین حاصل کرو، دین کی فقاہت حاصل کرو۔ تمہیں تفسیر، حدیث اور فقہ کے لحاظ سے ایک مقام ملنا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے قیامت تک کے لیے اس قوم کی بیٹی کے لیے اور مسلم خاتون کے لیے یہ کردار واضح کر دیا کہ تم ایسی نہیں ہو کہ تمہارے لیے علم کے دروازے بند ہوں اور یہ ایک اجنبی چیز ہو، بلکہ علم تمہارا ورثہ ہے، تمہیں ازواج مطہرات سے ملا ہے۔ لہٰذا ایک دختر اسلام آج بھی جب اس علم کی طرف متوجہ ہوتی ہے تو ان عظیم ماؤں کی برکت سے اللہ اس کو بھی زیور تعلیم سے آراستہ فرما دیتا ہے۔ گھر کے کام کاج کے ساتھ دین کا علم حاصل کرنا چاہیے۔ یہ دین ایسا نہیں ہے کہ اس کو مرد پڑھے تو آ جائے اور عورت پڑھے تو نہ آئے۔ پیچھے دین کا منبع جو ہے وہاں سے نصف دین آ رہا ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت سے آ رہا ہے، تو پتہ چلا کہ عورت کے لیے اس میں مناسبت بھی موجود ہے اور آسانیوں کے پہلو بھی رکھے گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی حضرت عائشہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سیرت کاملہ کے روشن پہلوؤں پر عمل کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو، کوتاہیوں کو معاف فرمائے اور ہمیں صاحب علم بنائے، صاحب فراست بنائے، دین کی سمجھ عطا فرمائے، قرآن پاک کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔